Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all are safe at home. Today we will start our new chapter, that is chapter number 7 of chemistry. The name of the chapter is The Trails of Fiber. Clear everyone? So you can also open your books along with me, page number 94. First of all, we will solve this riddle. So there is a one riddle on your page number 94. So in this riddle, uh, what this riddle says, it happened long time back. Green turned into a form to wrap. They are different, even they look the same. Weave and spin are part of the game. So कहते हैं ये बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था कि कुछ ग्रीन कलर का था और उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट किया गया था, एक कपड़े की तरह उसको वीव किया गया था टू रैप द बॉडी. क्लियर एवरीवन? सो दे आर डिफरेंट इवन दे लुक द सेम. क्या था, देवर देखने में वो सारी चीज़ें एक जैसी लगती थी बट देयर टेक्सचर वॉज डिफरेंट. क्लियर एवरीवन? एंड वीव एंड स्पिन, वीविंग एंड स्पिनिंग आर द पार्ट ऑफ दिस गेम. सो वी हैव टू सॉल्व दिस रिडल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, again we will meet for aliens, Klondike, Astrodec, Drill Deck, and you can say one more alien is there, that is Astrodec. Clear everyone? So Astrodec is saying this riddle is really confusing. This is very confusing. So the other one is saying couldn't agree more with you. Let's see, let's set the timer and find out. So he is saying that we can set the timer and we will find out that what is this riddle saying. Clear everyone? So one alien is saying where are we? So this looks like a store, human wear. So the other alien is saying that it looks like a store where the human wear, or you can say human cloths are present in that store. Clear? Hey, look at the different kinds of human wear. Now they are checking about the cloths over here. So one alien is saying look at this human wear. ठीक है, they are so beautiful. Did you notice something? So one alien is saying कि क्या आपने कुछ notice किया है? So what are you talking about? Okay, the other alien is asking, but what are you talking about? What we have to notice? See, all of them have the same color, but if you touch them they are different. So the other alien is saying that you have to notice this thing. What thing? That they all are looking same, ठीक है, but when we will touch them, then they are different. Then they are different on touching them, then they are different. Clear everyone? How is that possible? So next one is, and should you forget the connection with the weave and spin? So one alien is asking how is this possible, कि ये कैसे possible हो सकता है कि all the cloths are you can say looking same, ठीक है, but when we touch them, on touching them they are different. Then other alien is saying that did you forgot, क्या आप भूल गए हो कि weave and spin they have connection with the clothing. Clear everyone? Robonum, what do you got to say? Then other alien is asking to the Robonum that what do you want to say? Then Robonum is replying everything is same under the sun. Difference lies in how a tail is spun. Clear? A closer look would reveal all. To measure the distance you need to know the fall. Clear everyone? So Robonum is saying that everything looks same under the sun, but where is the difference, that how to spun a tail. ठीक है, हमने उस that from where we get the fibers, which fiber we are using, what are the characteristics of those fibers, that we will read in this chapter. ठीक है, so we will solve a mystery that why cloths differ from each other on touching them, why their texture is different from each other. Clear everyone? So let's start the chapter. Open your page number 97. First of all, fiber to fabric. Okay, so Robonum is saying let's look at the texture of a fabric. So Afdek is saying first I need to know what is this piece of material that human use for wearing. So Afdek is saying that firstly I want to know that what is that piece of cloth.
देन रोबोनोम इज सेइंग दिस इज कॉल्ड फैब्रिक, दिस इज कॉल्ड फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है बेटा? अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग एंड निटिंग। सो वीविंग एंड निटिंग वी विल रीड फर्दर, ठीक है। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट फैब्रिक इज अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, फाइनल क्लॉथ दैट इज मेड आफ्टर स्पिनिंग द फाइबर्स, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एफडेक। आई वंडर व्हाट इट्स मेड ऑफ। कहते मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि ये फैब्रिक किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, जो कपड़ा है, जो पीस ऑफ क्लॉथ है, वो किस चीज़ का बना होता है। देन रोबोनम इज सेइंग लेट्स चेक आउट। सो नेक्स्ट इज दिस इज़ अ ओवरव्यू दैट हाउ फैब्रिक इज़ फॉर्म्ड, कि जो एक जो फैब्रिक है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है, वो कैसे बनता है। सो अ फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम द फाइबर्स, फ्रॉम द फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? दीज फाइबर्स आर हेयर लाइक स्ट्रैंड्स, these are very thin hair like strands, ऐसे होते हैं, these are the very thin hair like strands, ठीक है। and after when we get these fibers from the plant sources or animal sources or any from you can say from artificial sources, clear everyone, then we spun them, तो उनको हम क्या करते हैं? उनकी स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। then yarns are formed, उसके बाद ये yarns बनते हैं, as we discussed in the online classes, you all know everything, clear। so then yarns are formed, and after that with the help of after the yarning there are two processes, weaving and knitting, clear everyone। so with the help of these two techniques the final fabric is formed। so this is how a fabric is formed from the fibers, clear everyone। now the next one is sources of fiber. firstly we will read about the sources of fibers। so there are two types of you can say two types of sources from where we can obtain fibers, clear everyone। ye wale fibers I have already shown you over here na। so these are the small hair like thin strands, okay। so from where we get them? so there are two types of sources, one is natural and other one is synthetic fibers। natural fibers are those fibers which obtained naturally from plants as well as from animals, those are known as natural fibers। and synthetic that are prepared in chemical laboratories, ठीक है, that are prepared artificially in the laboratories by using chemical substances, those are known as synthetic fibers, clear everyone। and natural fibers are biodegradable, natural fibers are biodegradable, biodegradable means they can decompose, ठीक है, and they do not cause any you can say they do not cause any environmental pollution, okay। but synthetic fibers are non biodegradable, they never decompose and they cause environmental pollution। next one is examples of natural fibers, cotton, jute, flax and wool and silk, these are the examples of natural fibers। and synthetic fibers, nylon, acrylic, polyester, these are the examples of synthetic fibers, clear everyone। so first of all we will discuss about the natural fibers, clear that natural fibers we have already discussed that there are various types of natural fibers like cotton, jute, flax, coir है ना, and wool and silk। so all these fibers we will read one by one। so first of all we will start with the cotton। so fabric name is cotton, fabric type natural, कॉटन वी आर गेटिंग नेचुरल ना फ्रॉम द कॉटन प्लांट। नेक्स्ट वन इज सोर्स, कहाँ से मिल रहा है हमें? कॉटन प्लांट से मिल रहा है, क्लियर। वट आर द कंडीशंस फॉर ग्रोथ वेयर कॉटन प्लांट्स ग्रो, ठीक है, वट आर द कंडीशंस फॉर देम? फर्स्ट इज वार्म क्लाइमेट, ब्लैक सॉइल and moderate rainfall, so these are the conditions to grow the cotton plant, warm climate, black soil and moderate rainfall, clear। uses, what are the uses where we use, you can say this cotton, clear, or cotton fabric or cotton fibers, where we use them to make the cloths, where we use the cotton fibers to first of all to make the cloths। हमारे पास कपड़े होते हैं ना कॉटन के, दैट वी यूजली वियर इन द समर सीजन, ठीक है, हम समर्स में पहनते हैं उसको, कॉटन फैब्रिक्स को और कॉटन क्लॉथ्स को। नेक्स्ट वन इज़ बेड शीट्स, टू मेक द बेड शीट्स, टॉल्स, स्टफिंग इन पिलोज एंड कुशंस एज अ बैंडेज मटेरियल इन द हॉस्पिटल्स। अगर हमारे चोट वगैरह लग जाए तो हम कॉटन का यूज़ करते हैं ना, सो एज अ बैंडेज मटेरियल इन द हॉस्पिटल्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉटन? कॉटन इज़ वेरी सॉफ्ट, कॉटन इज़ वेरी लाइट इन वेट, इट इज़ स्वेट एब्जॉर्बिंग, ठीक है। हम गर्मियों में कॉटन क्यों वियर करते हैं? बिकॉज
इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ स्वेट एब्जॉर्बिंग, ये हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेती है ईजिली। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ नॉट वेरी ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं चलती ये, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ इसकी नहीं है। हमारे कॉटन के कपड़े जल्दी टीयर हो जाते हैं ना, जल्दी फट जाते हैं अगर हम रेगुलर वियर करते हैं उनको, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेरी ड्यूरेबल। नेक्स्ट इज़ रिंकल ईजिली, इसमें रिंकल्स जो हैं वो ईजिली पड़ जाते हैं। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नाउ फ्रॉम हेयर द प्रोसेस स्टार्ट्स, प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, दैट हाउ वी गेट, यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी गेट द फाइबर्स, देन हाउ वी प्रोसेस्ड them to convert those fibers into final fabric. So there are various steps that we are going to read, so listen carefully everyone. So first of all, the fruits of cotton balls, the fruits of so cotton plant are called cotton balls, ठीक है, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना वाइट कलर के, these are the cotton balls, ठीक है, these are very small and about the size of लेमन, ये लेमन के साइज़ के होते हैं, जैसे नींबू होता है ना आपका इतना सा, तो उसके साइज़ के होते हैं। व्हेन दिस कॉटन बॉल्स राइपन, कहते हैं जब ये कॉटन बॉल्स राइपन हो जाती हैं, पक जाती हैं, देन दे बर्स्ट, वो बर्स्ट हो जाती हैं, अपने आप बर्स्ट होके ओपन हो जाती हैं। क्लियर एवरीवन। एंड द वाइट कॉटन फाइबर्स विद सीड्स कैन बी सीन इनसाइड द बॉल्स, उसके बाद कहते हैं जब वो ओपन हो जाती है राइपन होके, तो हमें वाइट कलर की कॉटन जो है वो विजिबल होती है इन दिस कॉटन बॉल्स। क्लियर। सो दिस इज ईजिली यू कैन सी द वाइट कलर्ड कॉटन इन द कॉटन बॉल्स। ओके, देन आफ्टर दैट व्हेन दे ओपन, जब ये ओपन हो जाती हैं लाइक दिस इन दिस पिक्चर, देन वी कलेक्ट दैम मैनुअली, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, तो हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं इन कॉटन बॉल्स को मैनुअली और इधर बाय मशीन्स टू ऑब्टेन द फाइबर्स। क्लियर एवरीवन। नाउ द सेकेंड step is ginning. What is the second step? That is ginning. So what is ginning? After the collection of the cotton balls, जब हम इनको collect कर लेते हैं, then there is a process, उसके बाद एक process है, that is the removal of seeds from those cotton fibers। जो कॉटन बॉल्स के अंदर वाइट वाइट फाइबर प्रेजेंट होती है, तो उनमें सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको सेपरेट करना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स, that process is known as ginning। Clear everyone। and ginning can be done either manually or by machines, ठीक है। अब वो हम सीड्स को रिमूव किसी चीज़ के साथ तो करेंगे ना, either we can do the removal of the seeds with the help of, you can say, machines or manually। क्लियर एवरीवन। इफ़ वी आर डूइंग मैनुअली, अगर हम मैनुअली कर रहे हैं, हैंड्स के साथ कर रहे हैं, तो एक कॉम्ब आता है, देयर इज़ वन स्पेशल कॉम्ब इज़ देयर, ठीक है, दैट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द सीड्स। ओके, सो एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी you can say discussed in the online classes and I have shown you videos also, ठीक है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है दैट हाउ द होल प्रोसेस अक्कर्स, कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग। What is the next step? Yes, now the next step is spinning। Yes, in spinning, after the removal of the seeds from the cotton fibers, now there is conversion, ठीक है। now the cotton fibers that we obtain they get converted into yarns, क्योंकि cotton fibers जो होते हैं हमारे पास छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं, these are the cotton fibers, thin hair like strands। ऐसे बहुत सारे thousands of cotton fibers, thousands of fibers होते हैं हमारे पास। वट इज़ द स्पिनिंग? स्पिनिंग होता है बेटा कि कन्वर्जन ऑफ, इनको कन्वर्ट करना, इन फाइबर्स को इनटू अ लॉन्ग थ्रेड। हम जो अपने घर में थ्रेड लेके आते हैं वो देखो कितना लॉन्ग होता है ना, बट अगर हम उसको एज सच ऐसे लॉन्ग थ्रेड बना के छोड़ दें तो ये सारा क्या हो जाएगा, इंटेंगल्ड हो जाएगा, उलझ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको यॉन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका गोला सा बना लेते हैं इस लॉन्ग थ्रेड का, ठीक है। सो दिस कन्वर्जन ऑफ फाइबर्स इनटू यॉन्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। बिकॉज क्योंकि हम एक लॉन्ग थ्रेड को हैंडल नहीं कर सकते इन द सेम मैनर, तो हमें वो किसी चीज़ के ऊपर तो वो करना पड़ेगा ना, उसको रोल करना पड़ेगा थ्रेड को। सो दैट इज़ नोन एज यॉन, ठीक है। तो हम उनके क्या बना लेते हैं, थ्रेड्स के, लॉन्ग थ्रेड्स के यॉन्स बना लेते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। नाउ स्पिनिंग
जो है देयर आर 3 वेज टू डू स्पिनिंग। हम स्पिनिंग भी तो किसी चीज़ के साथ ही करेंगे ना, ऐसे हम मतलब हैंड के साथ। सो इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हमारे पास बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स हैं, हमने फाइबर से थ्रेड्स बना लिए, ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि हमने अगर उसका गोला बनाना है, यॉन बनाना है ना। सो देयर आर 3 मेथड्स टू डू स्पिनिंग, सो दैट इज़ yes, so this is either with the help of takli, charkha or spinning machines. So these are the 3 methods, these are the 3 things that through which we can, you can say, spinning can be done. Spinning means fibers can be converted into yarns. Clear everyone? So this is spinning. Now next one is the weaving and knitting. So this is our last step, वीविंग एंड निटिंग। अब हमारे पास गोला बन के आ गया, यॉन्स बन के आ गए। जैसे मम्मा भी विंटर्स में क्या करते हैं, आपके मम्मा यॉन्स लेके आती है ना मार्केट से, ऊन के गोले, वूल के गोले लेके आती हैं। फिर मम्मा क्या करती है, उसकी निटिंग करती है। वो नीडल्स होती है ना मम्मा के पास, जिसको आप सिलाइयाँ बोलते हो, है ना, उसके लूप्स बनाती है फिर मम्मा उस कॉटन वूल के फाइबर थ्रेड के, है ना, लूप्स बना के उन नीडल्स में डाल देती है। तो फिर उसके बाद निटिंग करती है, एक एक लूप उधर, एक लूप उधर, एक लूप इस तरफ, एक लूप इस तरफ, है ना। तो ऐसे मम्मा डू निटिंग एट होम। सो दिस इज़ द सेम मेथड, दिस इज़ कॉल्ड निटिंग, जो मम्मा आपकी घर पे कर रही है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज निटिंग। क्लियर एवरीवन? सो वो यॉन है, वो एक यॉन है जो मम्मा आपकी घर पे लेके आती है। क्यों लेके आती है? कई बार आपका विंटर्स का स्वेटर बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, कैप बनाने के लिए, ग्लव्स बनाने के लिए, है ना। सो जो मम्मा वो घर पे कर रही है विद द हेल्प ऑफ नीडल्स, दैट इज़ नोन एज निटिंग, ठीक है। एंड इन निटिंग ओनली सिंगल यॉन इज़ यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है। एक यॉन का यूज़ होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है देन वी यूज़ सेकंड, जब सेकंड ख़त्म हो जाता है तो हम थर्ड वाला लगा लेते हैं यॉन। क्लियर एवरीवन? बट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द निटिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वीविंग। वीविंग क्या होता है? वीविंग इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक द फाइनल फैब्रिक। अब मम्मा आपकी निटिंग करती है, बुनने के बाद जब वो सिलाइयाँ बुनती रहती है तो फाइनल एट द एंड, ठीक है, आपकी एक चीज़ बन के तैयार हो जाती है, फाइनल फैब्रिक। अगर मम्मा ने स्वेटर लगाया तो आपका स्वेटर बन गया, है ना, सॉक्स लगाई हैं तो फाइनल सॉक्स बन गई, कैप लगाई है तो एंड पे फाइनल कैप बन गई, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये एक एंड प्रोसेस होता है, दिस इज़ द एंड प्रोसेस, क्लियर, इन विच फाइनल फैब्रिक you can say is ready. Okay, so final fabric we can make either with the help of knitting or with the help of weaving, ठीक है। सो वीविंग जो है बेटा, इसमें 2 सेट्स ऑफ यॉन्स, इसमें एक सिंगल टाइम पे एट अ टाइम 2 सेट्स ऑफ यॉन्स आर यूज्ड, ठीक है, 2 सेट्स यूज होते हैं यॉन्स के एंड to make the final fabric. Clear everyone? And in this you can say this entire process weaving can be done either by machines or by hand, ठीक है। एक मशीन आती है जो एक तो हैंड के साथ वो ऑपरेट होती है, एक मशीन ऐसी आती है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती है अपने आप। क्लियर एवरीवन? जो मशीन हैंड के साथ चलती है उसको हम बोलते हैं हैंडलूम, एंड द मशीन दैट इज़ ऑपरेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ नोन एज पावर लूम। Clear everyone? So knitting can be done either by hand or by machines or by with the help of machines. Clear everyone? So hand operated machines are known as hand looms and electricity operated looms are known as power looms. Clear everyone? And जो knitting है बेटा, knitting can also be done with the help of machines, ठीक है। either we can done it with done manually or either we can use machines. क्लियर? जो हम मार्केट से स्वेटर वगैरह लेके आते हैं वो क्या होते हैं, वो मशीन्स के थ्रू निटिंग होती है। क्लियर? एंड जो कपड़े निटिंग के थ्रू बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वीविंग मेथड। ओके, जो निटिंग के थ्रू हमारे कपड़े बनते हैं वो दे आर मोर स्ट्रेचेबल एज़ कम्पेयर टू द वीविंग मेथड। Clear everyone? So this is all about weaving and knitting. Now the next one is next natural fiber. So in this way this is the after weaving and knitting we get our, you can say, final fabric that is made from the cotton fibers. Clear? So these
this was the end process, weaving or knitting. Either we can do weaving or we can do knitting. So these are the two processes, these are the two methods through which we can make the final fabric. Clear everyone? Now the next one is, yes, next one is, next natural fiber is jute. Next natural fiber is jute. So this is a natural fiber because we get this fiber from the jute plants. Now the next one is, what are the conditions for growth? First one is warm and humid climate. Warm and humid climate, ठीक है, where we use them, वेयर वी यूज़ दिस जूट फाइबर. ठीक है, हम क्या चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस फाइबर्स? इन मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स, कारपेट्स. गनी बैग्स मैंने आपको दिखाया था ना, जो आपकी ब्राउन कलर की बोरियां होती हैं, पंजाबी में आप बोलते हो ना बोरियां, जो ब्राउन कलर वाली होती हैं, दोज आर नोन एज गनी बैग्स. क्लियर एवरीवन? So these are the uses. Now the next one is characteristics. What are its characteristics? It is very rough in nature. बहुत ही रफ सा होता है जूट फाइबर. ठीक है, शाइनी होता है, ये चमक सी होती है इसमें. स्टर्डी मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर. ठीक है, ड्यूरेबल अगर स्ट्रांग होगा तभी तो ड्यूरेबल होगा ना. सो ड्यूरेबल मीन्स ज़्यादा जो भी इससे चीज़ बनती है वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलती है. क्लियर एवरीवन? सो रफ इन नेचर, बहुत ज़्यादा रफ होता है. दैट्स वाई इसके जो क्लॉथ्स हैं वो नहीं बनते. वी नेवर मेक क्लॉथ्स फ्रॉम जूट फाइबर. क्लियर एवरीवन? ड्यू टू इट्स रफ नेचर. इसीलिए ये किस चीज़ में यूज़ होता है? टू मेक द रोप्स, टू मेक गनी बैग्स, टू मेक कारपेट्स एट्सेट्रा. ठीक है, अब जो हमारा रोप होता है, रोप मीन्स रस्सा. ठीक है, वो रस्सा देखो कितना रफ सा होता है जब हम उसको टच करते हैं, रस्सी को टच करते हो आप, इट इज़ वेरी रफ इन नेचर ना. सो दैट्स वाई वी नेवर मेक क्लॉथ्स फ्रॉम इट, बिकॉज इफ़ वी विल मेक क्लॉथ्स देन दे विल बी वेरी uncomfortable to wear. Clear everyone? Now we will read the process, that how fibers are obtained and then how fibers get converted into the other things. Clear everyone? So first of all, this is the first step. So jute fiber is obtained from the stem of the plant. जूट फाइबर कहाँ से obtain होता है बेटा? फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. क्लियर एवरीवन? सो जूट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर अबाउट 3 to 4 months ओल्ड. ठीक है, तो कहते हैं जूट प्लांट्स को, हम जूट क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट करते हैं? हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ द क्रॉप्स. ठीक है, कट कब करते हैं? आफ्टर 3-4 months, व्हेन दे वो जब पूरी तरह से ग्रो कर चुके होते हैं. क्लियर एवरीवन? व्हेन दे आर फुली फ्लैश्ड ग्रो, देन वी कट दैम. नेक्स्ट इज एंड एट द फ्लावरिंग स्टेज, आफ्टर हार्वेस्टिंग द बंडल्स ऑफ द स्टेम्स आर लेफ्ट फॉर ड्राइंग इन द सन. उसके बाद हम क्या करते हैं? उनके बंडल्स बना देते हैं स्टेम्स के, बिकॉज वी आर टेकिंग स्टेम्स इन दिस. क्योंकि स्टेम्स में फाइबर होते हैं तो हमें स्टेम चाहिए इसकी, तो हम क्या करते हैं? ऐसे स्टेम्स के बंडल बना देते हैं और उसको ऊपर से टाई कर देते हैं. सो मैनी बंडल्स वी आर मेकिंग. क्लियर एवरीवन? ऐसे हम बहुत सारे बंडल्स बना देते हैं उस चीज़ के. नाउ द नेक्स्ट वन इज़, देन वी कीप दोज बंडल्स इन द सनलाइट फॉर ड्राइंग. क्यों रखते हैं हम? ताकि उनके जो लीव्स वगैरह हैं स्टेम्स के ऊपर या फ्लावर्स वगैरह हैं वो ड्राई होकर अपने आप शेड ऑफ हो जाएं. बिकॉज वी वांट ओनली स्टेम, वी वांट ओनली स्टेम. क्लियर एवरीवन? Now the next process is ratting. Next process is ratting. Online students know everything because I have shown you video also that how jute fibers are obtained and how they are converted into other objects. Clear everyone? So next is ratting. So after removing the leaves, कहते जब उनके leaves shed off हो जाते हैं, then we keep those bundles of the stems into the water for, you can say, for a week. एक हफ्ते के लिए फिर हम उन स्टेम्स के बंडल्स को पानी के अंदर सोक कर देते हैं. ठीक है, क्यों सोक करते हैं? क्योंकि वो जो फाइबर्स होते हैं बेटा, ठीक है, उनको लूज़ करने के लिए. क्लियर? एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्टेम के अंदर, तो पानी में रखने के बाद वो स्टिकी सब्सटेंस क्या हो जाता है? वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. क्लियर? और जो फाइबर्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं दे गेट लूजेंड, वो लूज़ हो जाते हैं. एंड देन वी टेक और सेपरेट दोज फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम मैनुअली. तो हम उसको मैनुअली फटाफट निकाल लेते हैं क्योंकि वो पानी में रखने के बाद बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं फाइबर्स.
क्लियर एवरीवन, तो वो अपने आप ही बाहर आने लगते हैं। क्लियर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रैटिंग। ओके, द ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग माई क्लासेज रेगुलर, they are in very much benefit because I have shown everything through YouTube videos। ठीक है, मैंने उनको एक्सप्लेन करके साथ में यूट्यूब वीडियो भी दिखाई है दैट हाउ इट दिस प्रोसेस अकर्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वॉशिंग एंड ड्राइंग। नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉशिंग एंड ड्राइंग। नाउ द सेपरेटेड फाइबर्स, जो हमने स्टेम्स में से फाइबर्स निकाल लिए, ठीक है, नाउ वी विल वॉश दैम इन द क्लीन वाटर। अब हम उनको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, एंड देन अगेन वी विल कीप दैम ऑन द बैम्बू रेलिंग्स फॉर ड्राइंग फॉर 2 to 3 days। अब हम उन फाइबर्स को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे 2-3 दिनों के लिए, ठीक है, बाय कीपिंग दैम इन द सनलाइट। Now the after that the same process is there as it was in cotton. Now the next process is weaving, spinning and weaving. Now we obtain fibers, अब हमें jute fibers मिल गए हैं, ठीक है। Now what is our next process, spinning. Now we will do spinning of these fibers and we will make long threads of jute fiber, ठीक है, and then from those threads we will make yarns। हम क्या बना लेंगे, yarns बना लेंगे, बड़े बड़े गोले बना लेंगे, ठीक है, जूट थ्रेड के, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। एंड आफ्टर दैट वी विल डू वीविंग, ठीक है, उसके बाद वी विल डू द प्रोसेस ऑफ वीविंग इन विच वी विल मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस। सो दिस वॉज हाउ अ जूट फाइबर गेट कन्वर्टेड इन टू, यू कैन से, अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हाउ इट इज़ यूज्ड टू मेक अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर एवरीवन? Now the next fiber is, yes, now the next fiber is flax. Next fiber क्या है बेटा, it is flax. So it is also a natural fiber that we obtained from the flax plant. Clear everyone? And what are the conditions to grow flax plant? That is cold and humid climate. And what are the uses of flax plant? First of all, we use flax fibers to make cloths. Next is bed and bath fabric, paper, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक फिशिंग नेट। क्लियर एवरीवन? जो फिशिंग नेट क्या होता है, फिशीज़ को कैच करने वाला नेट, दैट इज़ नोन एज फिशिंग नेट। सो इन ऑल दीज थिंग्स वी यूज़ फ्लेक्स फाइबर्स। क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट इज now we will read the process. Now we will read the, yes, now we will read the process that how flax fibers are obtained and how they get converted into, you can say, final fabric or other objects. Clear? So flax fiber is one of the oldest used fibers in the world. So these are the oldest fibers, सबसे old fibers हैं ये, these are the oldest fibers, ठीक है, that we are using in the ancient times also in the world. Clear? Now next one is the flax fibers are obtained from the stem of the flax plant. Again these fibers are obtained from the stem like jute fibers. Clear? So next one is to obtain the fibers, the flax plant is processed in the similar manner as the jute plant. So process is same that we have discussed in the jute plant. So flax fibers, to obtain the flax fibers the process is same as of jute plant. Jute plant में क्या था, firstly we cut down the stems, ठीक है, then we make the bundles, then we keep them in the sunlight for drying, है ना, then leaves and flowers जो थे वो shed off कर गए थे after drying. After that we keep those bundles into the water for a week, एक हफ्ते के लिए हमने उनको water में रख दिया. Clear everyone? And then the fibers get loosened and then we separate those fibers after 1 week from the stems. Clear? Then next step was washing and drying. फिर हमने उन fibers को wash कर लिया और dry कर लिया. Then the last step was spinning and weaving. Then the last step was spinning and weaving. ठीक है, तो हम उसके बाद हमने उन fibers को spin कर लिया to make the long threads and then we make the yarns and after that we weave them to make a final you can say objects or final fabric. So the process is same in the flax you can say with flax fibers also. Now the next one is the obtained fibers are spun into yarn followed by knitting or weaving to make the fabric. So the process is same as of the jute plant. कहते जो fibers हमें मिल जाते हैं after
following these steps, then we do the last step, weaving and knitting. Clear everyone? And the fabric that is obtained from this plant, that is the लीलन fabric. ये कौन सा fabric होता है? लीलन fabric. Clear everyone? So the fabric that we get from the flax plant, that is लीलन fabric. And लीलन is very good. लीलन फैब्रिक, लीलन जो कपड़ा है बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी गुड. ठीक है, बिकॉज वी यूजली वियर दिस लीलन फैब्रिक इन समर सीजन. ठीक है, गर्मियों में पहनते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट. ठीक है, कॉटन की तरह ये भी क्या है, हमारे स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है. क्लियर एवरीवन? एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, जो ये फाइबर्स हैं, फ्लैक्स फाइबर्स हैं, दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री. क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट वन इज coir. Next one is coir. So the fiber name is coir. It is also a natural type of fiber. ये भी हमें naturally मिलता है. From where? What is the source? कोकोनट. कोकोनट, नारियल, सबको पता है ना नारियल. ठीक है, उसका जो आउटर लेयर होता है, हस्क ऑफ कोकोनट, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में हस्क दिखाई थी कोकोनट की ऑन गूगल. जो आउटर लेयर होती है, जब मम्मा या पापा घर में नारियल लेके आते हैं तो आप उसको छीलते हो ना, बहुत मुश्किल से, काफ़ी टाइम लग जाता है उसको निकालने में. फिर उसके बाद अंदर वाला पार्ट आप खा लेते हो. ठीक है, जो वाइट वाइट सा निकलता है उसमें से. सो जो आउटर लेयर होती है, दैट इज़ नोन एज हस्क ऑफ कोकोनट. सो दिस फाइबर वी obtain from the husk of coconut, that is fiber name is coir. Clear everyone? What are the conditions for growth? सैंडी सॉइल, ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है, सैंडी सॉइल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो दीज आर द कंडीशंस. नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस. इसके क्या यूजेस हैं? अब आपको पता है कि आउटर लेयर कोकोनट की कितनी रफ होती है वो हस्क, है ना, हमारे कई बार चुभने भी लगती है. कितने गंदे से फाइबर्स होते हैं, कितने रफ से फाइबर्स होते हैं, हम निकाल के फटाफट उसको फेंक देते हैं. सो दैट्स वाई वी नेवर मेक क्लॉथ्स फ्रॉम दिस फाइबर. हम कभी भी इस फाइबर के क्लॉथ्स नहीं बनाते. अगर हम बना लेंगे देन दे विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल, तो वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई. ठीक है, सो वी नेवर मेक क्लॉथ्स फ्रॉम देम. वी यूजली मेक रॉप्स, मैट्रेसेस, ठीक है, ब्रशेज, floor mats, door mats, etc. So these are the things that made from this fiber coir. Okay. मैट्रेसेस क्या होते हैं? जो हमारे गद्दे होते हैं, जो बेड के गद्दे होते हैं ना, उनको बोलते हैं मैट्रेसेस. क्लियर एवरीवन? सो दो मैट्रेसेस आर ऑल्सो कहाँ कैसे बनते हैं? फ्रॉम द क्वायर फाइबर्स. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ वेरी रफ इन नेचर एंड स्टर्डी. स्टर्डी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ये. Next one is another plant fiber that is used to make ropes and carpets is coir. एक तो हमने किसके बनाए थे ये ropes and carpets? जूट फाइबर के. ठीक है, जूट फाइबर is also used in these things and कहते this is the another fiber. Coir is the another fiber that we used in making the ropes and carpets. तो coir फाइबर के भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूट फाइबर के ही बनते हैं. coir फाइबर कैन ऑल्सो बी यूज्ड. ठीक है, coir is obtained from the husk of coconuts that I have already told you कि जो coir है वो husk of coconut से बनता है and it is present in the outer coats of the coconut. जो husk है, this is the outer layer of the coconut. Clear everyone? So this these were our natural fibers. Tomorrow you can say next video we will discuss the natural fibers but that we obtain from the animals. ठीक है, that we obtain from the animals, wool and silk. We will discuss in next video. Till then, bye bye everyone.